وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله. اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سبحان اللہ. بدلے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. یہ رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. اس کے لیے مومنوں کے لیے یہ رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. یہ جہاں رہتی ہے وہاں نور پیدا ہوتا ہے. یہ جہاں جاتی ہے اور جس جگہ پر رہتی ہے وہاں پر لوگوں کے لیے عزت کا سبب بن جاتی ہے. اور جس کے سینے میں آ جائے اس کا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ بنا دے. سبحان اللہ. یہ وہ عظیم کتاب ہے. ہم کو اس بات پر فخر ہے کہ آسمانی ادیان میں جو مذہب آسمانی تعلیمات پر چلتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے دوسرے مذاہب ہوں، ان میں صرف واحد ہم ایسے ہیں جس کے پاس اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت آج بھی ویسے ہی ہے. سوائے قرآن کے اور کوئی مذہب والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ جیسی خدا نے بھیجی تھی آج بھی ویسی ہے. 14 صدیاں بیت گئی قرآن کو لوگوں کو پڑھتے پڑھتے. اس کی لذت، اس کی مٹھاس اور اس کی عظمت دیکھیے کہ آج بھی لوگوں کا دل نہیں بھرا. قرآن واحد کتاب ایسی ہے کہ جتنا پڑھو لذت اور زیادہ پیدا ہوتی ہے. جتنا پڑھو لذت اور زیادہ پیدا ہوتی ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رہبر اور رہنما بنا کر کے بھیجی. اس کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں. ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں. یہ پڑھنے کا ثواب ہے. یہ صرف پڑھنے کا ثواب ہے. اور جس کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے سبحان اللہ. کہنا کیا ہے، ماں باپ کے تو وارے نیارے ہیں اور وہ جو ہے اس کے لیے دنیا میں بھی بخشش کا ذریعہ، آخرت میں بھی بخشش کا ذریعہ. لوگ جو ہے نا، لوگ غلط نہ مانے تو ایک بات بتاؤں، مالدار اکثر جو ہے نا ان کی رال مال کے لیے ٹپکتی ہے. بھائی میرے بچے کو انجینئر بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا تو مال لے کر آئے گا. لیکن خوش نصیب ہے وہ انہوں نے اپنے بچے کے لیے آخرت کو چنا. اس لیے کہ مال فرعون، حامان، قارون، شداد سب کے پاس تھا، لیکن اللہ کا دین اللہ اسے عطا کرتا ہے جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے. اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور میں تو ایک بات اور کہتا ہوں کہ ہمارے علاقے بھائی کا بچہ جو ہے نا، ان کا بیٹا چھوٹی عمر میں حافظ قرآن بنا، یہ ایسے ہی سمجھو جیسے ریگستان میں گلاب کھلا ہے. ریگستان میں گلاب کھلا ہے. اس لیے کہ بہت جلدی جو ہے اس قوم سے ہی آتے ہیں، اس قوم کے بچے جلدی حافظ قرآن نہیں بنتے. حافظ قرآن نہیں بنتے. انہوں نے جو ہے ایک الگ طریقہ چنا. انہوں نے کہا کہ دنیا تو خوب بھر بھر کے خدا نے دی ہے، دنیا تو خدا نے خوب بھر بھر کے دی ہے. انہوں نے آخرت کو پسند کیا. تو چونکہ جہاں تک میرا گمان ہے کہ میمن سماج میں، پورے میمن سماج میں یہ واحد بچہ ایسا ہوگا جو 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں، پورے بھاؤنگر میں گن لیجیے، پورے بھاؤنگر کے اندر یہ واحد بچہ ایسا ہے جو 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنا. یہ لائق سب مبارکباد. بچے کو لاکھوں سلام. لیکن جب گلاب کھلتا ہے نا، صرف
अकेले गुलाब ही का कमाल नहीं, उसके पीछे इन्वायरमेंट भी चाहिए, वातावरण भी चाहिए, ज़मीन भी ऐसी चाहिए, और अभी माली भी ऐसा चाहिए, उसको संभालने वाला भी ऐसा चाहिए, हवाओं की भी ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है, और ज़मीन की भी ज़रूरत है। इस बच्चे को लाखों सलाम करते हैं, लेकिन ये बच्चा हाफिज़ कुरान बना है, इसके पीछे इसके उस्ताद की अनथक मेहनत है। हाफिज़ फैज़ल जो है, अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमाए और अल्लाह इस बच्चे के जज्बे को सलामत रखे। तो अनथक मेहनत है इनकी, और सिर्फ इनकी मेहनत से भी काम न चलता। मैंने कहा ना, इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, वातावरण बहुत ज़रूरी है। घर वालों ने ऐसा माहौल दिया, तड़प के कहना, आज घर वाले पूछते हैं बच्चा स्कूल गया कि नहीं गया, आज घर वाले पूछते हैं कि बच्चा ट्यूशन गया कि नहीं गया। इनके माँ बाप ने, इनके दादा दादी ने, इनके घर वालों ने इनका कितना ख्याल रखा होगा, इनका कितना ख्याल रखा होगा कि हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान बन रहा है। मैं इसकी मेहनतों को सलाम करता हूँ, अल्लाह को तहियत पेश करता हूँ कि छोटी उम्र में इन्होंने जो है कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया है। ये इनके लिए दुनिया और आखिरत की एक बहुत बड़ा खजाना है जो इन्होंने जमा किया है। लेकिन इसके पीछे उनको ये भी देखना पड़ेगा कि उसके उस्ताद की भी इतनी मेहनत है जो माली बन कर के उसे सजाते रहे, और वालिद वालिदा जो है वो इन्वायरमेंट बन करके, वातावरण बन करके बच्चे को संभालते रहे कि हमारा बच्चा दुनिया सीख रहा है तो साथ में दीन भी सीखे। और आपको नहीं मालूम कि ये कितना अजीम हो गया है, कितना अजीम हो गया है। सिर्फ एक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पर, सूरह फातिहा पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला पूरे कुरान का जो सवाब देता है। अब ये रोज़ाना पढ़ेगा, रोज़ाना पढ़ेगा, 1 सिपारा पढ़ेगा, 2 सिपारे पढ़ेगा, रोज़ाना पढ़ेगा, और अजर व सवाब इसके लिए भी होगा, इसके उस्ताद के लिए भी होगा, और इसके माँ बाप और ख़ानदान वालों के लिए भी होगा। कल मैदान महशर में इनके ख़ानदान वालों को अल्लाह तबारक व तआला चमकता दमकता नूर का ताज पहनाएगा। लोग पूछेंगे ये कौन है कि जिनके सरों पर ऐसे चमकते दमकते ताज हैं, ये ताज क्यों पहनाए जा रहे हैं? क्या ये कोई वली अल्लाह है? कहा जाएगा ये वली अल्लाह की सफ में नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने बच्चे के सीने में कुरान को महफूज कर दिया था। आज अल्लाह ने ये बता दिया है कि इनके सर पर नूरानियत का ताज रखा गया है। तो लाइक के साथ मुबारकबाद है हमारे लाकिन भाई और उनका पूरा फैमिली होगा, पूरा फैमिली। ये हमारे रफीक भाई, वो तो दीनदारी में पहले ही से आगे, बहुत आगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी खिदमत कबूल फरमाए और इन्हें आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। ये आज अपनी आंखों से देख रहे हैं, इस उम्र में आज अपनी आंखों से देख रहे हैं कि अल्लाह ने इनके बाप को हरा भरा कर दिया है। आज ये फख्र से सीना ऊंचा हो रहा है कि मैंने अगर दीन की खिदमत की है तो अल्लाह ने ऐसा गुलाब खिलाया है कि मैं सीना खोल करके कह सकता हूँ कि पूरे समाज में मेरे अकेले के खानदान का बच्चा है जो 11 साल की उम्र में हाफिज कुरान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जो है इसका बदला अता फरमाता है, अल्लाह इसका बदला अता फरमाता है। ये कुरान जहाँ जाता है इज्जत देता है, कुरान जिसके सीने में जाता है इज्जत देता है। गरीब से गरीब का बेटा भी हो ना, अगर सीने में उसके कुरान आ जाए तो मुसल्ले पर सबका इमाम बनकर खड़ा होता है। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है अहले सरोवत और मालदार लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको पहले ही से इज्जत दी थी, अल्लाह ने और ज़्यादा कुरान के ज़रिए इज्जत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। या तो सवरी ही सवरी, आखिरत भी समझ जाएगी। मैं छोटा सा वाक़या आप लोगों के लिए सुनाऊँ। कुरान जो है वो शिफा भी है और हिफाजत भी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इससे 2-3 बातें याद आ रही है, लेकिन एक ही बात को कह करके खत्म करूँ कि एक बंदा जो है एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था, तो लोग बयान करते हैं कि मैंने रात के वक्त गुजरते हुए कब्रिस्तान की सारी कब्रों को खुला हुआ देखा और उसमें से
सारे मुर्दे जो है वो बाहर निकल करके कुछ चुन रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने ख्वाब के आलम में ये देखा कि सारे कब्रें खुली हुई हैं और सारे मुर्दे बाहर निकले हुए हैं अपनी अपनी कब्रों से, और एक जगह पर जाकर बैठ करके कुछ चुन रहे हैं। तो बड़ा दिल लगा उसमें कि यार ये तो बड़े मजे की बात है, कब्रें खुली हुई हैं, मुर्दे बाहर निकले हुए हैं और खुशी खुशी कोई चीज चुन करके जमा कर रहे हैं। तो वो ख्वाबी के आलम में जाकर पूछते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि एक बंदा इस कब्रिस्तान से गुजरा और उसने फातिहा पढ़ करके सारे कब्र वालों को इसाले सवाब दिया है। अल्लाह ने जो है वो सवाब नाजिल किया है, उसी को चुन करके अपने खाते में इकट्ठा कर रहे हैं। उनकी नजर में देखा कि दूर एक बंदा जो है, उनकी कब्र तो खुली हुई है और बहुत ही साफ सुथरे लिबास में कब्र के किनारे आकर बैठे हुए। बोल रहा कि यार ये क्या बात है, ये सारा ही कब्रिस्तान तो लगा हुआ है और ये क्यों बैठे हैं दूर जाकर के। तो कोई क्यूरियोसिटी होती है ना, जुस्तजू जिसको कहते हैं, तो भागकर उनके पास गए, कहा आपके साथ क्या मामला है, जब सारे ही लोग चुन रहे हैं तो आप क्यों नहीं चुन रहे सवाब को। कहा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, चुनने जाने की ज़रूरत नहीं। कहा आपको क्यों ज़रूरत नहीं। कहा जब मैं मरा था तो मेरे पीछे मैं एक बेटे को छोड़ के आया था और मेरे मरने के बाद मेरी बीवी ने मेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दिया। इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हो सकता। इसलिए फिर सारा तो यही रह जाएगा ना, और ये जो बनाया है ना तो वहाँ काम लगेगा, वो वहाँ काम लगेगा। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर क्यों बनाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ना, पैसा अपना डालते हैं ना, यार रिफंड मिलेगा बाद में बड़ा होगा तो। और ये क़यामत तक का रिफंड हो गया इनके लिए, पूरे ख़ानदान के लिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं। कहा क्यों ज़रूरत नहीं। कहा मेरा बेटा हाफिज़ कुरान है, काम धंधा भी करता है और सारा दिन कुरान पढ़ता है और रात होते होते मुझे कुरान बख्श देता है। रोज बैठे बिठाए मुझे सारे कुरान का जो सवाब मिल जाता है, इसलिए चंद सवाब चुन जाने की मुझे ज़रूरत नहीं। जब तक मेरा बेटा सलामत है तब तक ही आता रहेगा, तब तक मेरा बेटा सलामत, तब तक आता। ख्वाब तो खुल गई कि यार ये तो ख्वाब था कि क्या था, लेकिन ख्वाब ही ख्वाब में पूछ लिया कि तू कहाँ का रहने वाला था और तेरी दुकान कहाँ लगी थी। उसने बता दिया अपना पूरा एड्रेस कि मैं फला जगह पर वो मिठाई बनाने का काम करता था, कंदोई था, और मैं जलेबियाँ बना कर लोगों को बेचा करता था, और उसी जगह पर मेरा बेटा बैठता है, सारा दिन वो जलेबियाँ भी बेचता है, मिठाई भी बेचता है और कुरान पढ़ करके मुझे बख्श देता है। अब सुबह सवेरे बड़े मियाँ उठे और भागे उस दुकान की तरफ जाकर देखे तो सही कि सिर्फ ख्वाब ही है या हकीकत भी है कुछ। तो बुजुर्ग कहते हैं मैं सुबह फजर की नमाज के बाद निकल गया, तलाश करते करते मुझे काफ़ी टाइम लगा, लेकिन मैंने उस दुकान को ढूंढ लिया। देखा एक बादशाह सैयद का पाबंद नौजवान मिठाइयाँ बना रहा है, जलेबियाँ बना रहा है और अंदर ही अंदर मन ही मन में कुछ पढ़ रहा है, उसके होंठ पील रहे। तो मैंने बहाने में चंद जलेबियाँ खरीदी और फिर उससे गुफ्तगू में लग गया कि पूछूं कि हकीकत क्या है। जब गुफ्तगू में लग गया तो उसने पढ़ना बंद करके मुझसे बात करने लग गया। कैसा काम धंधा चलता है? कहाँ बराबर चलता है, ठीक ठाक है। ये दुकान कहाँ मेरे वालिद साहब ने लगाई थी, आज मैं बैठता हूँ। तो कहा आप क्या करते हो? कहा सारा दिन मिठाई बनाता हूँ, बेचता हूँ और सारा दिन बीच में कुरान पढ़ता रहता हूँ। सुबह से शाम तक भी मेरा कुरान मुकम्मल होता है, हिसाब घर लेकर जाता हूँ, सवाब अपने अब्बा को पहुँचा देता हूँ। मैंने कान पकड़ लिए कि यकीनन ये बात बरहक है कि उसे रोज सवाब पूरा कुरान मिल रहा है, रोज पूरा कुरान का सवाब मिल रहा है। जरा सोचिए तो सही, हमारे लाकिन भाई के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके रफीक भाई के लिए, जिन्होंने दीन की बड़ी खिदमतें की हैं। ये बच्चा रोज कुरान पढ़ेगा और रोज इसका जो सवाब जो है उसके उस्ताद के खाते में और फिर जो है उनके माँ बाप के खाते में जाएगा, और न जाने कब तक के जाता रहेगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। और जिन लोगों को पढ़ाएगा उसका भी जो सवाब जाएगा, क्योंकि ये मल्टी लेवल चलता है ना।
ये मल्टी लेवल चलता है। ये जिसको जिसको सिखा देगा वो सारा जो सवाब जो है वलाकिन भाई और रफीक भाई और पूरी फैमिली को जाता रहेगा। तो लाइक इज्जत मुबारकबाद है ये लोग जिन्होंने इस छोटी उम्र में अपने बच्चे को डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा तो की बात तब है, लेकिन अभी हाफिज कुरान बना दिया है। तो बुजुर्ग कहते कुछ दिनों बाद फिर मेरे आग लगी है, मैंने ख्वाब देखा कि फिर वो कब्रिस्तान है और फिर सारे मुर्दे जो है वो चुन रहे हैं और सवाब इकट्ठा करें। लेकिन अब की बार वो कब्र बटी हुई है, लेकिन वहाँ पर बंदा जो बाहर खरामा जो बैठा था बड़े नाज के साथ, अब वो नजर नहीं आ रहा, वो भी चुन रहा है। तो मैं चला गया उसके पास कि बड़े मियाँ क्या हुआ, आप क्यों चुन रहे हो? कहा खुदा की करनी ऐसी कि अल्लाह ने मेरे बेटे को जिंदगी की लंबी मोहलत न दी, उसका इंतकाल हो गया, अब कोई भेजने वाला नहीं है, इसलिए अब ज़रूरतमंद हो गया हूँ, इसलिए यहाँ पर चुन रहा हूँ। तो याद रखें इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है, वक्त डाला है, पैसा दिया है, बच्चे को मेहनत में लगाया है, ये कल इनको काम लगेगा। कल यानी कि मैदान महशर में ये जो मैंने कहा ना, जब रेगिस्तान में गुलाब खिलता है तो उसके पीछे बहुत सारों की मेहनत होती है, एक माली की भी मेहनत होती है, एक उसे संभालने वाले एनवायरनमेंट की मेहनत होती है, वो सारे सब लगते हैं, तब जाकर के कोई गुलाब खिल पाता है। इस बच्चे को लाख सलाम करता हूँ, हज़ारों तहनीयत पेश करता हूँ जिसने इस छोटी उम्र में हाफिज़ कुरान बन करके अपने ख़ानदान का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया है। याद रखें कुरान जहाँ रहता है वहाँ इज्जत मिलती है, कुरान जहाँ रहता है वहाँ रहमत नाजिल होती है, कुरान जहाँ रहता है वहाँ हिफाजत नाजिल होती है। अल्लाह इसके ज़रिए हिफाजत भी करता है, अल्लाह इसके ज़रिए इज्जत भी देता है और अल्लाह इसके ज़रिए रहमत भी देता है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है कुरान पर अमल करने की और उस पर उसको पढ़ने की और उसको आम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस फैमिली को और ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमाए, दीन की खिदमत करने का जज्बा अता फरमाए। ऐसे ही हमारी कौम के बच्चे छोटी उम्र में अगर हाफिज़ कुरान होते रहें तो फिर हमारी कौम कभी पीछे नहीं रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में भी और दीन में हर जगह अल्लाह उसे तरक्की अता फरमाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। चंद लफ्ज़ थे मेरे पास जो मैंने आपको पहुँचाए। अल्लाह